राज्यसभा में आज सभापति और विपक्ष के बीच जमकर तनातनी देखने को मिली। राज्यसभा में सभापति और विपक्ष के बीच तनातनी हुई। जया अमिताभ बच्चन नाम लेने पर राज्यसभा में हंगामा हुआ। राज्यसभा से विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। विपक्षी दलों ने सभापति धनखड़ से माफी की मांग भी की। तो राज्यसभा में कार्रवाई चल रही थी। सभापति जगदीप धनखड़ आसन पर थे, लेकिन बारी जब जया बच्चन की आई तो उन्होंने जया बच्चन अमिताभ बच्चन कहकर बुलाया गया और बस उसी पर यह पूरा हंगामा जो है वो पसर गया और इसी पर पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, राज्यसभा में हंगामा और विपक्ष का वॉकआउट। जया अमिताभ बच्चन is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. तो नाम लेने पर जया बच्चन का जगदीप धनखड़ पर हमला सामने आया। मैं सभापति की भाषा का विरोध करती हूं, ये कहा जया बच्चन ने। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन, उन्होंने कहा, मैं सभापति की भाषा से निराश हूं। आज तक संसद में कोई सभापति ऐसे नहीं बोला। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. No, but
बैठिए ऑनरेबल मेंबर्स, बैठिए 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 बैठिए, आई नो हाउ टू डील विद इट, बैठिए। जया जी, यू हैव अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन, you have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here every day. I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say my tone? No, no, no seat given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, no, not at all. I will not bear it. One second. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. सुष्मिता देव। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in Parliament. और इस पूरे मामले पर संसद भवन से रमन कुमार हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। रमन, सीधा आपसे जानना चाहूंगी आखिर मसला क्या है, क्योंकि इससे पहले भी उपसभापति हरिवंश जी जब सीट पर थे तब भी जया बच्चन के साथ तल्खी आई थी, तब भी उन्होंने पुरुष नारी विभेद और नारीवाद इस तरह के कुछ बातें कही थी। और आज भी जब जगदीप धनखड़ ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहा तब उन्हें बुरा लगा। तो आखिर जो सांसद है वो राज्यसभा सचिवालय में अपना नाम खुद देता है या फिर वहां से ये आता है? आखिर वजह क्या है, क्यों जया बच्चन इस चीज पर बार बार जो है वो उनको बुरा लगता है? देखिए, जया बच्चन ने इस पर पहले भी आपत्ति जताई थी राज्यसभा के सभापति से, और सभापति से अनुरोध किया था कि उनका नाम जया बच्चन होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक महिला के नाम के साथ पुरुष का नाम भी जोड़ा जाए, क्योंकि महिला अपने दम पर खड़ी हुई है। ये बातें जया बच्चन ने अपनी दलील में कही थी। लेकिन आपने सही कहा कि जो रिकॉर्ड में लिखी हुई बातें हैं, रिकॉर्ड में जो नाम दिया गया है, राज्यसभा के सभापति उसी नाम को उद्धृत कर रहे थे। और साफ तौर पर सिर्फ जया बच्चन का मामला नहीं है, ये मामला है मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो आरोप ये लगाया गया कि उनका माइक ऑफ कर दिया गया, और राज्यसभा में बीजेपी के सांसद जो हैं उनके खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और उसको लेकर प्रोटेस्ट भी जताया गया। यानी कि पूरे विपक्ष की तरफ से वॉकआउट किया गया, और वॉकआउट करने के बाद उस वॉकआउट में सोनिया गांधी से लेकर जयराम रमेश से लेकर तमाम विपक्ष के सांसद थे। जया बच्चन उसकी अगुवाई भी कर रही थी। जया बच्चन लगातार ये कह रही थी कि जिस टोन का इस्तेमाल राज्यसभा के सभापति करते हैं वो उस टोन पर आपत्ति है, और उस बात पर आपत्ति है कि जिस बात का इस्तेमाल राज्यसभा के सभापति करते हैं। सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि तल्खी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात भी चल रही है, चर्चा चल रही है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है राज्यसभा के सभापति के खिलाफ। विपक्ष एकजुट है। विपक्ष का ये कहना है कि राज्यसभा के सभापति जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो स्वीकार नहीं है, और आने वाले समय में ये तल्खी बढ़ सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से साफ तौर पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया विपक्ष के व्यवहार के खिलाफ में, और जगदीप माफ कीजिएगा जो सदन के नेता हैं उनकी तरफ से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और पास किया गया, और साफ तौर पे कहा गया कि विपक्ष के सदस्यों का जो रुख है वो रुख पर हमें सख्त आपत्ति है।
लेकिन रमन, सपा की तरफ से राज्यसभा सांसद हमेशा से जया बच्चन रही है। इससे पहले भी हमने संसद में देखा है, हमने कभी जया अमिताभ बच्चन उनका नाम नहीं सुना। तो अभी इस बार की संसद में उनका नाम जया अमिताभ बच्चन होना, ये कैसे हुआ? क्योंकि राज्यसभा सचिवालय में जो सांसद नाम देते हैं वही बुलाया जाता है। तो आखिर ये बात ऐसी क्यों आ रही है? क्या ये इस पर भी मनमानी की बात सामने आ रही है और यही वजह है कि जया बच्चन को हर बात ये बुरी लग रही है? देखिए, राज्यसभा के सभापति के द्वारा जया अमिताभ बच्चन जब पुकारा गया था, उस दिन ही जया बच्चन ने उस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि पुरुष का नाम कोई जरूरी नहीं है, महिला के साथ जोड़ा जाए। और उस पर जगदीप धनखड़ ने कहा था कि उनका नाम रिकॉर्ड में है और रिकॉर्ड में जो नाम है उसी नाम को वो उद्धृत कर रहे हैं। साफ तौर पर राज्यसभा के सभापति लगातार ये कह रहे हैं कि अपनी तरफ से उन्होंने कोई नाम नहीं पुकारा है, जो नाम रिकॉर्ड में है उसी रिकॉर्ड के नाम को उन्होंने पढ़ा है। लेकिन जया बच्चन को अगर आपत्ति है तो राज्यसभा के सभापति को भी उस नाम को उद्धृत नहीं करना चाहिए, उस नाम को पुकारा नहीं जाना चाहिए। इस बात को लेकर सांसद लगातार गुस्से में हैं। सांसदों का यह कहना है कि सभापति जानबूझकर चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब क्या लग रहा है कि अब क्या राज्यसभा की जो कार्रवाई है क्या वो अभी क्या स्थगित हुई है? क्योंकि विपक्ष ने तो वॉकआउट कर दिया और विपक्ष की नारेबाजी भी सामने आई। जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि दादागिरी नहीं चलेगी और आपके द्वारा भी कहा गया है कि हो सकता है कि प्रस्ताव लाया जाए, वहीं जेपी नड्डा जो है वो भी निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। अब क्या कुछ होगा आगे? देखिए, जेपी नड्डा ने निंदा प्रस्ताव पढ़ दिया है, राज्यसभा के अंदर पढ़ दिया है। जब विपक्ष ने वॉकआउट किया था उसी दौरान निंदा प्रस्ताव पढ़ा गया था और राज्यसभा के सभापति की सहमति उसके अंदर थी। अब चूंकि लंच ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक के बाद ये देखना होगा कि विपक्ष ने जो वॉकआउट किया है वो विपक्ष सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेता है या नहीं लेता है, क्योंकि विपक्ष के कई सांसदों का ये मत है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। अब उस पर सहमति कितनी बनती है देखने वाली बात होगी। दिव्या, रमन, अभी तक हम देख रहे हैं कि संसद वो जगह है जहां पर मुद्दों को लेकर तनातनी होती रही है, लेकिन अब नाम जो है उसको लेकर भी इस तरीके का जो व्यवहार है वो सामने आ रहा है। और अगर एक महिला सांसद द्वारा ये कहा जा रहा है कि मेरा नाम ऐसा ना ले, तो फिर क्यों उनको बार बार उसी नाम से? और रमन, आप बने रहिए।